So, is there any question, set of question, or should I? You can start. You can start. When we are talking about neuromusculoskeletal problem, today I'm also going to give you certain herbs and medicine that you can use, tips that you can use, हाँ वो सब भी बताते जाएंगे बीच में. पर एक one incidents or a set of incidents that I want to share with everybody. Yesterday, I got a news that a young girl of 16-year age committed suicide. 2 days back, I got the news of another young girl, 22 years of age, committed suicide. Today, I got a news of a person of a young uh, student, a male student of 24-year age committed suicide. Just 3 days back, 3, 4 days back, or maybe a week back, there were two kids who actually did our kids program, Vistara Gurukul program. One of them achieved a percentage of 97.8% in his examination, 12th examination. And he was talking to me, and I said, congratulations, बहुत बढ़िया percentage आया. You should be happy. He said, Swamiji, I don't feel happy. Although I have achieved more than what I expected, अपनी सोच से ज्यादा अचीवमेंट हुआ, मगर मुझे अंदर से खुशी नहीं हो रही. एंड अ फ्रेंड ऑफ हिज ऑल्सो, उसके बारे में तो था कि ये पास हो जाए किसी तरीके से, बट ही अगेन गॉट 92%. मगर अंदर से खुशी ही नहीं हो रही. So I asked somebody, I was meeting that person just few hours back. I met that person and I asked him, what is the most the biggest problem at this point of time? What do you see in your terms? आपके अनुसार कौन सी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय पे? And without even thinking, he said stress. बहुत स्ट्रेस है. बहुत स्ट्रेस है. So, and this is like becoming epidemic. In next 10 years, mental and psychological disorder is going to become epidemic. Epidemic. एक लेडी जो कि हमारी कुंभक प्रैक्टिशनर है, शी शेयर्ड वीक्स बैक, एक हफ्ते पहले, that my daughter, 22 years old, she committed suicide. And एक बहुत मार्मिक लाइन, एक एक पंक्ति उन्होंने बोली कि ना तो हम अपनी बेटी को बचा सके और ना वो अपने आप को बचा सके. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये मैं बता क्या रहा हूं, और उसका न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम से व्हाट इज द को रिलेशन. You know what is the first symptom of a depressed patient, of a depressed person? What is the first symptom? पहली चीज क्या सफर करते हैं एक डिप्रेस्ड इंसान, स्ट्रेस में हुआ इंसान, पहली चीज क्या सफर करता है? What is the first thing that the person suffers? Very difficult to move.
लो कॉन्फिडेंस बाद में आते हैं, बॉडी से कोई काम करने का मन नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। नो इंटरेस्ट इन फंक्शनिंग, नो इंटरेस्ट इन वर्किंग, नो इंटरेस्ट इन मूविंग अहेड। शरीर चलेगा नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ करने में। टायर्डनेस, लेस एनर्जी, लो, वीकनेस, यही फील करता है ना। नाउ वेयर आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट इट विथ मूवमेंट, उसका रुक जाता है। द लाइवली मूवमेंट ऑफ दैट पर्सन स्टॉप्स। When we say neuromusculoskeletal problem, we are talking about the movement, the mechanical architecture of human being. मूवमेंट में जो आपको सहयोग करता है उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना। आप हाथ पांव से ही तो मूव करते हैं, मसल न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से ही तो मूव करते हैं। दैट इज द डायनामिक मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसी से आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। And do you think the more mental issues increases in the world, the more neuromusculoskeletal problem will increase? क्या आप ये मानते हैं? क्या आप समझ सकते हैं इस बात को? So let us talk about it in a reverse manner. Let's correlate it in a reverse manner. अगर आपको न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है तो क्या कैन इट बी रिलेटेड टू योर मेंटल वीकनेस? इसको मैं और भी ज्यादा कोरिलेट करके दिखाऊंगा आपको। एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द लिम्स। हाथ पांव के मूवमेंट के बारे में ही बात नहीं कर रहे। एनी काइंड ऑफ अ मूवमेंट। वेन यू ईट समथिंग, जब आप भोजन करते हैं, जब आप भोजन करते हैं, इट हैज टू मूव और नॉट मूव? टेल मी। उसको मूव करना चाहिए ना? फ्रॉम योर माउथ टू योर गट टू योर stomach and gut and then liver and then blood and then your tissues and then something has to go out of the body also, कुछ बाहर भी निकलना चाहिए। तो all the time it has to move, yes or no? If the food is not moving, अगर भोजन मूव नहीं कर पा रहा, इट विल नॉट मेटाबोलाइज प्रॉपरली, इट विल नॉट गेट एब्जॉर्ब प्रॉपरली, आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, डीजेनरेटिव डिजीज हो जाएगा। व्हाट इज न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम? इट्स अ डीजेनरेटिव डिजीज। आपके घुटने घिस गए, कार्टिलेज घिस गए, बन नहीं पा रहा। डीजेनरेटिव डिजीज। स्पाइन में इशू है, हिप में इशू है, बन नहीं पा रहा। डीजेनरेटिव डिजीज, यस और नो? इट्स अ डीजेनरेटिव डिजीज। जनरेट करने के लिए यू नीड मूवमेंट एंड न्यूट्रिशन, इजंट इट? तो इफ देर इज लैक ऑफ मूवमेंट इन योर गट, आपके पेट में अगर वो ठीक से मूव नहीं कर पा रही चीजें, मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही चीजें, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम आएगा ना। ना, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम ही केवल एक पार्ट नहीं है, बट यू नो वेयर इज योर अर्थ? आपका पृथ्वी कहां पे है? योर गट इज योर अर्थ। आपकी जमीन कहां पे है? आपके गट में, इंटेस्टाइन जो है ना, आपकी जमीन है वो। वहां से कोई भी चीज एब्जॉर्ब होता है, तब आपके पत्ते क्या हैं? एक पेड़ अगर पौधा समझें, जस्ट थिंक योर सेल्फ अबाउट अ लाइक अ ट्री। वेयर इज द रूट? इन योर गट देयर इज द रूट। आपके पेट में, आंतों में रूट है आपका, और आपका स्किन उसका लीव्स है। इस पेड़ का लीव्स क्या है? आपका स्किन। स्किन इज द लीव्स। सो थिंग्स हैज टू मूव फ्रॉम योर गट अप टू योर स्किन प्रॉपरली। अब मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी बताऊंगा, बट देन
आई डोंट नो हाउ मच यूज वी कैन मेक आउट ऑफ इट, बट आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए. You know, we have started sweating less. The humankind have started sweating less. हमें कम पसीना आ रहा है आजकल. 20 साल पहले जितना हमें पसीना आता था ह्यूमन ह्यूमन बींग्स को, उतना आज नहीं आ रहा है. Yes, there are many reasons for it. One of them is AC. The most prominent one is AC. But you can't live without AC now. हाँ, आप तो रह नहीं सकते ना बिना एसी के. आप कैसे रहेंगे, इतनी गर्मी हो गई. सो व्हाट आई एम कोरिलेटिंग विथ, इसको पकड़ के रखिए. अगर समझ जाएंगे तो बहुत बड़ा एरिया खुल जाएगा, एंड वी कैन वर्क अपॉन इट टू हेल्प द होल ह्यूमैनिटी. जिसको भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसको पसीना नहीं आता, पसीना कम आता है. पकड़ के रखना इसको, इस बात को पकड़ना. जिसको भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है उसको पसीना कम आता है. तो अगर पसीना कम कर देंगे, स्वेटिंग, इफ यू रिड्यूस द स्वेटिंग, द क्वांटिटी और द स्वेटिंग इंडेक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, दे विल गो इनटू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. समझ में आ रहा है? So sweating is also a movement na in your body, the movement of water element in your body, isn't it? If the movement stops, you will get into not only just a psychological issue, but metabolic issue also. क्योंकि मूवमेंट रुक गया तो मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा. यहां से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. तो क्या कर सकते हैं? व्हाट सपोर्ट यू कैन टेक? फर्स्ट ऑफ ऑल, कुंभक करके पसीना आता है. हाउ मेनी ऑफ यू नो? जो कर रहे हैं. कुंभक करके पसीना आता है. तो कुंभक को मत छोड़ो, बाकी कुछ भी छोड़ दो. इफ यू कांट डू द होल मॉड्यूल, एटलीस्ट डू इट इन पार्ट्स. दिन में 2 कर लो, शाम को 1 कर लो, बट डोंट लीव कुंभक. कस्टमाइज करो. तो कुंभक will help in the movement, and I'll also explain kumbhak in a different manner. तो चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश करें तो समझ में आएगा. दैट मीन्स कुंभक हेल्प थिंग्स टू मूव इनसाइड योर बॉडी. कुंभक से पसीना आता है तो यानी कुंभक से आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी ठीक होता है. ठीक है, आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी ठीक होता है कुंभक से. बट देन दिस प्रोग्राम इज नॉट डिजाइंड फॉर इट. हमने उसको उस तरीके से डिजाइन नहीं किया. इट नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कुंभक. बट मूवमेंट तो क्लियरली हम अपने बॉडी में बढ़ाते ही हैं. मूवमेंट तो हम अपने बॉडी में बढ़ाते हैं. इस वक्त में आपका मेटाबॉलिक वीकनेस अगर हम कहते हैं, which is also correlated with the movement discrepancy in the movement factor, तो कुंभक उसको हेल्प करता है. बट देन इफ द मूवमेंट स्टॉप्स, कहीं का भी अगर मूवमेंट रुक जाएगा, इसका मतलब आपके शरीर में गर्मी पैदा नहीं होगी ना, क्योंकि मूवमेंट से ही गर्मी पैदा होती है. दैट मीन्स योर मेटाबॉलिक हीट विल कम डाउन. Primary reason for any and every kind of a problem at this point of time is metabolic disorder. आपकी भोजन कितना पचा सकते हैं? एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजिंग फूड हैज कम डाउन ड्रास्टिकली इन द लास्ट 50 years. 50 सालों में
भोजन इस्तेमाल करने की क्षमता आपके शरीर की बहुत कम हो गई है। इफ दैट हैपन्स, देयर विल बी वन प्रॉब्लम, देन नेक्स्ट, देन थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद में एमएस बोल देते हैं उसको, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड करेक्ट, इसके बारे में हम बात करें। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड करेक्ट? पहली चीज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग। 20 years बैक, 30 years बैक, भोजन का जो टेस्ट आता था, द काइंड ऑफ टेस्ट यू यूज टू गेट आउट ऑफ फूड, आज क्या वो टेस्ट है? आज वो टेस्ट नहीं। हाउ डज योर बॉडी रिकग्नाइजेस फूड? आपका शरीर भोजन को कैसे रिकग्नाइज करता, पहचानता है? जैसे आप तो किसी की शक्ल से पहचान जाते हो ना। आप कैसे पहचानते हो इंसान को? शक्ल से पहचानते हो ना। आपका शरीर भोजन को कैसे पहचानता है? उसकी आंखें क्या है? व्हाट इज द आईज ऑफ योर बॉडी विच रिकग्नाइजेस फूड? इट इज बेसिकली टेस्ट। इट इज बेसिकली टेस्ट। आपका शरीर कैसे पहचानता है भोजन को? टेस्ट के रूप में पहचानता है ना। अगर उसका टेस्ट रिकग्नाइज टेस्ट है, पहले जैसा टेस्ट है, जैसे हमारे पूर्वज खाते आ रहे हैं, तब तो वो उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसको नहीं समझ में आएगा तो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ योर बॉडी? इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म। ये अपने आप को खुद ही एडजस्ट करता है। इफ यू डिविएट योर बॉडी, इट विल ट्राई टू कम बैक टू नॉर्मल। अगर शरीर को आप किसी तरीके से अपनी स्थिति से हटाने की कोशिश करेंगे, वो वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा। अगर उसको कोई रुचिकर लगेगा, अगर उसको कोई सुगम लगेगा, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने। If there is a food which is not giving you the taste that you recognize 30 years back, your body recognizes 50 years back, 50 साल पहले जिस तरीके का टेस्ट था, आलू का टेस्ट था, वो आज नहीं है वो टेस्ट। So your body doesn't recognize the new taste properly. It will not absorb or use the new taste properly. It will feel as if a risk has come. उसको कोई खराब करने के लिए आया, तो वो अपने को बार बार वापस लाने की कोशिश करेगा, बाय एनहांसिंग द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़ा के अपने आप को पहले की स्थिति में लाने की कोशिश करेगा। बार बार ये काम होता है तो उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अभी किसी ने पूछा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो अभी हमको करना क्या पड़ेगा? वी नीड टू क्रिएट अ बिग मूवमेंट कि नेटिव ब्रीड के क्रॉप्स उगाइए, ऑर्गेनिक उगाइए, नॉट हाइब्रिड, नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। नेटिव ब्रीड का हमारे को भोजन चाहिए। इफ वी क्रिएट अ मूवमेंट और अ डिमांड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, more and more farmers will be pushed towards growing organic and native breed crop। ये इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। But then everybody of you will have to participate in that। आप सोचते हैं सरकार काम कर देगी, ये काम कर देगा, ऑर्गेनाइजेशन कोई कर देगा। नहीं नहीं, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। You should never give health, education, and spirituality to any government and any organization or any school or any hospital। अपना हेल्थ, एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी कभी भी डेलीगेट मत करो किसी और को, ये आपको अपने हाथ में ही रखना है। तो द काइंड ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग, योर बॉडी डजंट रिकॉग्नाइज इट। जो भोजन आप कर रहे हैं, आपका शरीर पहचानता ही नहीं है उसको। अनजान आदमी को तो आप घर में भी आने नहीं देते, बाहर ही रखते हो। हाँ या ना? यस और नो? फॉर अ न्यू कमर यस और, है ना? अनजान आदमी आएगा तो आप एकदम से घर में थोड़ी बुलाओगे।
आप बाहर ही पूछोगे आप कौन हो, क्या काम है। आपका शरीर क्यों अलाउ करेगा किसी अनजान फूड को अपने अंदर, क्यों अलाउ करेगा बताइए। वो जानता ही नहीं है हाइब्रिड क्या कर दिया आपने, ये इनऑर्गेनिक प्रोसेस फूड क्या कर दिया आपने, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है ये फूड तो नहीं है मेरा। लेकिन एकदम से तो हम वहां पे नहीं आ सकते, वी कांट क्रिएट ऑर्गेनिक एंड नेटिव ब्रीड्स सडनली, इट विल टेक 100 ईयर, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स। बट देन आर चिल्ड्रन विल बेनिफिट, हमारे बच्चे उसका बेनिफिट लेंगे। लेकिन हमें आज काम करना पड़ेगा, विल हैव टू वर्क टुडे। नाउ सेकंड थिंग, वो विथ वॉट एवर अवेलेबिलिटी, आपके आसपास में जो भी अवेलेबल है, नाउ वी नीड टू डू समथिंग सो दैट द बॉडी एब्जॉर्ब्स इट मोर। कुछ तो हमको करना पड़ेगा जिससे कि हमारा शरीर उसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो तीन चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, दीपन पाचन विरेचन। तीन चीज आयुर्वेद बोलता है, बहुत बेसिक चीज है, दीपन पाचन विरेचन। दीपन, जब आपको बहुत भूख लगे तभी भोजन करें, ये तो काम सभी कर सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग दैट कैन बी डन इज, टाइम पे भोजन नहीं करना, जब भूख लगे तो भोजन करना। कब भोजन करना, जब भूख लगे तो भोजन करना, जब प्यास लगे तो पानी पीना। नहीं नहीं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, ऐसा किसी ने बता के गए, है ना, ऐसा कोई बता के गया, खुद तो अपनी उम्र से पहले चला गया, मगर हमको तो बता गया। वाघभट्ट बोल गए थे, वाघभट्ट ऋषि बोल गए थे। अब वाघभट्ट जिस समय पे थे, जिन लोगों को बोल रहे थे, पता नहीं क्या सिचुएशन थी। मगर आज आपका शरीर आपको बताता है ना, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, तो उसकी बात मानो। वाघभट्ट आ जाएं तब उनकी बात मान लेना। अभी अपने शरीर की बात मानो। तो खाना कब खाना, भोजन कब करना है, खाना तो ऐसा लगता है बहुत ही खराब ही शब्द है। भोजन कब करना है, भोजन तब करना है जब भूख लगे। भूख नहीं लगे तो कोई भोजन नहीं। भजन करो, भूख ना लगे तो भजन करो, नहीं तो भोजन करो, भूख लगे तो भोजन करो। प्यास लगे तो पानी पियो। नहीं नहीं, मुझे ना खाने के बीच में प्यास लग, भोजन के बीच में प्यास लग जा, तो पानी पियो ना। जो वात प्रकृति के होते हैं उनको भोजन से पहले पानी पीना चाहिए, जो पित्त के होते हैं उनको भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए, जो कफ के होते हैं उनको भोजन के बाद, कुछ समय बाद, उनको प्यास ही नहीं लगेगी। मगर ये भी ध्यान नहीं रखना। ध्यान क्या रखना है, वॉट यू शुड अंडरस्टैंड इज, वेन एवर योर बॉडी सेज, वेन एवर योर बॉडी इंडिकेट्स, डू दैट एट दैट टाइम। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें आपको हमेशा अपने साथ में रखनी है। घर में ये सब होना चाहिए, घर में ये सब होना चाहिए, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको। भोजन को पचाने वाली सारी चीजें आपके घर में होनी चाहिए, सो दैट योर फूड गेट्स यूटिलाइज प्रॉपरली। एंड देर आर थ्री थिंग्स, तीन चीजें हैं, ऑनलाइन मंगा लो। त्रिकटु, क्या मंगाना है, त्रिकटु चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, पाउडर, चूर्ण मतलब पाउडर। दूसरी चीज क्या मंगानी है, ताली सादी चूर्ण, ताली सादी चूर्ण। तीसरी चीज क्या मंगानी है,
चित्रक आदि वटी, चित्रक आदि वटी, चित्रक आदि वटी। ये तीन चीजें ऑन एंड ऑफ आप इस्तेमाल करते जाएं। अगर आपको लगता है यू हैव सम प्रॉब्लम विथ योर डाइजेशन, ईदर यू गेट एन एसिड रिफ्लक्स और देर इज ब्लोटिंग, ब्लोटिंग हो रहा है पेट में, पच नहीं रहा कुछ, कुछ पच नहीं रहा। अगर जलन होती है पेट के अंदर, खाते ही जलन होता है, एसिड रिफ्लक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ऊपर आ रहा है ऐसा नहीं बोल रहा, अल्सरेटिव कंडीशन है, अल्सर है, जलन होता है खूब, तो आपको गुनमक डोरी, ये हमसे मंगा लीजिए, गुनमक डोरी। अभी बता रहा हूं ये कैसे यूज करना। इन इन चार चीज को कैसे इस्तेमाल करना। यू कैन मिक्स ताली सादी एंड चित्रकारी, आधा चम्मच, 1/4 स्पून मिक्स कर लो, 1/4 मिक्स करके हाफ अ स्पून ताली सादी, नॉर्मल स्पून ताली सादी एंड चित्रक त्रिकटु, त्रिकटु और ताली सादी को 1/4 टी स्पून मिक्स करके रखो। इसको किसी में मिक्स करके भी रख सकते हैं। हाफ अ टी स्पून निकाल के पानी से पहले, खाने से पहले, फर्स्ट थिंग बिफोर हैविंग फूड यू ईट दिस थिंग, हाफ अ स्पून ऑफ दिस पाउडर। अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो खाने से पहले थोड़ा सा गुनमा कटोरी, 1/4 टी स्पून पेस्ट है वो आप पानी से ले सकते हैं। अगर अल्सर जैसा है, अंदर खाते ही पूरा पेट जलता है, तो गुनमा कटोरी ले सकते हैं। अदरवाइज खाना पचाने के लिए, दीपन के लिए, 1/4 ताली सादी, 1/4 त्रिकटु, ये मिक्स करके भी रख सकते हैं और बराबर मात्रा में, और वहां हाफ स्पून ये पानी के साथ ले लेंगे, नॉर्मल वाटर के साथ में या थोड़ा गर्म पानी के साथ में, गुनगुने पानी के साथ में ले सकते। कोशिश करें कि खाने के साथ में आप थोड़ा जीरा का पानी इस्तेमाल करें, है ना। अभी बता रहा हूं, आप आराम से पहले लिखो। खाने भोजन के साथ में जीरे का पानी, थोड़ा जीरा डाल के उबाल लो। हमेशा भोजन के साथ में जीरे का पानी यूज करो, या फिर एक साउथ इंडिया में, केरला में एक पाउडर मिलता है, दाह निवारण पाउडर, दाह, है ना, ऑनलाइन मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, केरला में मिलता है, केरला में हर जगह यूज होता है। या तो जीरे का पानी यूज करो, या फिर दाह निवारण पाउडर, उसको पानी में थोड़ा गर्म करके आप रख सकते हैं। भोजन के साथ, भोजन के पहले, बाद में, जब भी पानी इस्तेमाल करना है, ये वाला इस्तेमाल करो, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल करो, जीरे का या फिर दाह निवारण। उसके साथ में आपने ये पाउडर ले लिया, खाना भोजन कर लीजिए। भोजन करने के बाद में आपको चित्रकादिवटी 1 या 2 टैबलेट चूस लेना है, 1 या 2 टैबलेट चित्रकादिवटी चूस लेना है ना। ये आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और 2 बार कर सकते हैं, आइडियली 2 बार। आफ्टर 50 यू शुड बी ईटिंग ट्वाइस ओनली, 50 साल के बाद में 2 बार ही भोजन करो। ठीक है, ये चीज, ना व्हाट इट विल डू, इट विल इंप्रूव योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये हमने फिक्स कर दिया। आइडियली आप देखो, ये प्रयोग आप 3 हफ्ते तक कर सकते हो, उसके बाद यू कैन ड्रॉप इट फॉर सम टाइम एंड अगेन डू इट आफ्टर 1 मंथ। 3 हफ्ते का प्रयोग किया, उसके बाद में थोड़े समय के लिए छोड़ दिया, 1 आध महीने 2 महीने के लिए छोड़ दिया, फिर आप 3 हफ्ते का प्रयोग करो, इस तरीके से
इसको आगे ले जा सकते हैं। 2-3 महीने छोड़ दिया, 3 महीने की जरूरत नहीं, एक आध 2 महीना छोड़ा, फिर से 3 हफ्ते का प्रयोग कर लिया। यू डू इट फॉर 3 इयर्स, 3 साल तक करते जाओ। सो दीपन, पाचन, कुंभक से भी पाचन होता है। और वर्किंग, आप शरीर से कोई काम लेंगे तो भी उससे पाचन। देन कम्स विवेचन, कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखो। पसीना आना चाहिए सबको, तो कुंभक करना है पहली बात। दूसरी बात और क्या कर सकते हैं? केवड़ा जल, केवड़ा जल बीच बीच में पीते रहें। पानी में 1 चम्मच केवड़ा जल डाला, पी लिया। जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको किडनी का इश्यू है, जब भी पानी पियो 1 चम्मच केवड़ा जल डालो, पी लो। हमारे पास भी केवड़ा जल है, आप यूज कर सकते हैं, या मार्केट से आप केवड़ा जल मंगा लो। अच्छी क्वालिटी का मंगाना, बस इतना। केमिकल वाला नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए। केमिकल वाला नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए। दूसरी चीज, जिन लोगों को एलर्जिक कंडीशन है, सो आई, अंग्रेजी में बोल देता हूं, somebody said अंग्रेजी में चाहिए। सो व्हाट वी आर करेक्टिंग, वी आर करेक्टिंग द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। फॉर करेक्टिंग द रूट, what I suggested that if you have ulcerative condition, you can take Gunma Kudori, 1/4 of a teaspoon before meal. If you take, your ulcer condition will become fine. And let me also tell you, ulcer condition is primary to every disease. Everybody has ulcer in their alimentary system. अभी हिंदी में बता दिया, अभी अंग्रेजी में बता रहा हूँ भाई, उसके बाद वापस हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूं। Before meal, you can take Trikatu Churn and Tali Sadi Churn, sorry, 1/4 of a spoon each. That means half a spoon of Tali Sadi Churn, Tali Sadi powder, and Trikatu powder. You can mix them too. Half a spoon of Tali Sadi and Trikatu powder. After meal, you can actually you can take Chitrakadivati, 2 tablets or 1 tablet. You suit the amount of things you are taking according to your body, whatever it feels comfortable. 1 to 2 tablets Chitrakadivati afterwards, after meal. है ना? ये करो, एसिडिटी में इसमें वैसे ही हेल्प मिल जाएगा। Then I said, if you, for moving things inside the body, Kevada Jal, 1 spoon in 1 glass of water. Whenever you are drinking water, you can take Kevada Jal. And if somebody has allergic condition, gluten से एलर्जी है, दूध से ब्लोटिंग होता है, चाय पी नहीं सकते, ऐसी अगर कंडीशन है, एलर्जिक कंडीशन इवन टू फूड, भोजन से भी कहीं ना कहीं किसी से भी एलर्जिक कंडीशन है, ठीक से पच नहीं रहा, वो भी एलर्जी इज वन ऑफ द रीजन व्हाई योर बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली। इलायची का जल, इलायची का जल, whenever the oil is extracted from elaichi, cardamom, the leftover water is elaichi jal. It will reduce inflammation as well as allergic condition in your body. Any allergic condition. One of the reason of autoimmune disorder or neuromuscular arthritis, rheumatoid, इन सब का ना, one of the reason is histamine intolerance, यानी एलर्जिक कंडीशन भी है, तो कभी कभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इलायची जल, केवड़ा जल, है ना,
फॉर हार्ट पेशेंट, फॉर किडनी पेशेंट, फॉर पीपल हु डू नॉट गेट स्वेटिंग, शरीर में चीजों को मूव कराने के लिए, टू मूव थिंग्स इन योर बॉडी। नहीं नहीं, ग्रीन कार्डेमम, नॉट ब्लैक कार्डेमम, ग्रीन कार्डेमम। ग्रीन कार्डेमम का जल मिल जाएगा, आप देख लो कहीं मिल जाएगा, नहीं तो हमारे पास मिल जाएगा। आर्थराइटिस अगर बहुत ज्यादा है तो यू कैन ऑल्सो यूज नागर मोथा जल। नागर मोथा का जल अगर इस्तेमाल करेंगे, ये ना कभी कभी अपने लाइफस्टाइल में डालने के लिए, है ना, दिन में एक बार किसी चीज का इस्तेमाल कर लिया, दिन में दूसरी बार किसी और चीज का। इफ यू सी एलर्जी कंडीशन, वो इलायची का इस्तेमाल किया। इफ यू हैव हार्ट एंड किडनी इशू, यू कैन यूज केवड़ा। नागर मोथा यूज करें, आर्थराइटिस बहुत ज्यादा है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, नागर मोथा जल। And shortly we will give you, we'll be making this available to everybody. हार श्रृंगार जल, हार श्रृंगार, नाइट क्वीन, रात की रानी, द मोस्ट alkaline product available to humankind. The most alkaline product available to humankind is हार श्रृंगार। सबको एल्कलाइन बनना है ना, एसिडोसिस हो रहा है, सबका एसिडोसिस हो रहा है, तो एल्कलाइन बनना है। काउ यूरिन इज वन ऑफ द मोस्ट एल्कलाइन प्रोडक्ट। काउ यूरिन, गाय का मूत्र, वन ऑफ द मोस्ट एल्कलाइन प्रोडक्ट। और नागर मोथा का अगर आप जल, सॉरी, हार श्रृंगार का जल यूज करेंगे तो विल शॉर्टली मेक इट अवेलेबल। हमको कोई अच्छी क्वालिटी का मिल नहीं रहा था, अभी मिल गया। हार श्रृंगार जल एकदम से अल्कलाइन हो जाएगी बॉडी आपकी। पारिजात, हाँ पारिजात भी, हार श्रृंगार इज पारिजात, रात की रानी, नाइट क्वीन, है ना। पारिजात का जल अभी आपको हम अवेलेबल करवा देंगे, तो वो दैट इज द मोस्ट अल्कलाइन स्टफ अवेलेबल टू ह्यूमन काइंड। हाँ, हार क्यों नहीं, बिल्कुल, आप अगर घर पे बना सको घर पे बना लो। कहीं और मिलता है हार श्रृंगार का जल, आई एम टॉकिंग अबाउट जल, जल पानी। उसका जब हम एसेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उस समय पानी जो बचता है उसको, उसका जल कहा जाता है। पारिजात अगर आपके पास में, यू कैन च्यू द लीव्स ऑल्सो, लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार श्रृंगार का जल, उसमें तो आपको वो एक्सट्रैक्शन की मशीन, वो मशीन लानी पड़ेगी। एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन लानी पड़ेगी, तब आपको जल मिल जाएगा। देखो आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारे पास थोड़े ही टाइम में मिल जाएगा, इन अ वीक और 10 डेज में मिल जाएगा। बट दीज आर, देखो अभी आप ये समझने की कोशिश करो। सूरज की वजह से, बिकॉज ऑफ द सन और एक्टिविटी, योर बॉडी एक्चुअली एक्सपैंड्स, आपका शरीर फैलता है। एक्सपेंशन इज ऑल्सो डिसइंटीग्रेशन। जब चंद्रमा ऊपर होता है तो आपका बॉडी वापस से इंटीग्रेट होता है, इट इंटीग्रेट्स बैक वेन एवर द मून इज अप, वेन द सन इज अप इट डिसइंटीग्रेट्स, and then it integrates back, disintegrates, integrates back. Yeah, this is the process of life. Now the moon aspect has become weak, the sun aspect has become excessive. सूर्य का पक्ष भी जो है ना आज के टाइम पे बढ़ गया। सो इन द लास्ट 25 years ह्यूमन काइंड हैव गॉट देमसेल्फ इनटू एसिडोसिस, एसिड फैक्टर बढ़ गया शरीर का। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत लोगों में, टॉक्सिन की डिफिकल्टी, टॉक्सिन्स बहुत बन रहे हैं शरीर में। दैट मीन्स यू नीड अल्कलाइन नेचर, आपको अल्कलिनिटी भी चाहिए, आपको कुंभक भी चाहिए और अल्कलिनिटी भी चाहिए। मून एस्पेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। मून एस्पेक्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। चंद्रमा साइकोलॉजी के साथ में जुड़ा है, मन के साथ में जुड़ा हुआ है।
मन खराब हो रहा तो चंद्रमा वीक हो रहा है। दैट मीन्स यू नीड एल्कलिनिटी अपने शरीर में, आपको इंटीग्रिटी चाहिए, इकट्ठापना चाहिए। सो एल्कलाइन स्टफ एक्चुअली हेल्प्स। हार श्रृंगार उसमें से एक है, सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा एल्कलाइन स्टफ क्या है? कोबरास वेनम, कोबरा का जहर। कोबरा का जहर सबसे अल्कलाइन चीज है। बट उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? मिलेगा भी नहीं। सो इन नेचर वॉट एवर वी हैव अवेलेबल, अवेलेबिलिटी ऑफ वॉट एवर वी कैन यूज दैट। हार श्रृंगार, रात की रानी। ठीक है ना, ये कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए, आई कैन नॉट रिपीट थिंग्स अगेन एंड अगेन। इवन एश गॉड, यस, एश गॉड इज ऑल्सो अल्कलाइन। पारिजात, हार श्रृंगार, रात की रानी सब एक ही है। उसका जल अगर यूज करेंगे, एलर्जिक कंडीशन में इलायची का यूज करेंगे, इलायची जल और कार्डेमम। है ना, इलायची, ग्रीन इलायची, कार्डेमम, ग्रीन कार्डेमम। ओके, देन कम्स विरेचन। देन कम्स विरेचन। देखिए, अल्कलाइन बनाने के लिए और भी तरीके हैं। इफ यू कीप योर लेग्स अप एंड हेड डाउन 15 to 25 डिग्री, 15 से 25 डिग्री पे, पाँव ऊपर सिर नीचे रखेंगे। पाँव के नीचे पुट टू कुशंस अंडर योर लेग्स, वन कुशन अंडर योर हिप, एंड लाई डाउन इन दिस मैनर फॉर 40 मिनट्स टू 1 आवर। 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक अगर ऐसे लेटेंगे, पाँव ऊपर सिर नीचे, 15 to 25 डिग्रीज, यू विल सी योर बॉडी विल बिकम कूल, एल्कलाइन नेचर बढ़ जाएगा। देन इफ यू रिलीव योर सेल्फ ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होते ही बॉडी का एल्कलिनिटी बढ़ता है। द एल्कलाइन नेचर ऑफ बॉडी increases. Only when alkaline nature increases, the virechan or defecation happens properly. ठंडा करना शरीर को। कोई भी जल आपको इस्तेमाल कैसे करना है? 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जल डाल के पी लीजिए। तो पेट साफ रखना सबसे जरूरी चीज है। इफ इट इज वेरी स्टबर्न, यू कैन यूज सम स्टफ, कुछ चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैव टोल्ड द यूज ऑफ हरितकी। You can use Triphala, you can use Isabgol, or you can use arand oil, castor oil, half a cup of milk, cow milk, warm milk, 1 spoon of castor oil. At least do it once a week. हफ्ते में एक बार जरूर करो। Before going to bed, half a cup of milk with 1 spoon of castor oil. ये बच्चों को भी दें। हफ्ते में एक बार कम से कम सभी करना चाहिए, सभी को। Having ghee with karchurak in the morning, again, ghee with karchurak, ghee with karchurak. 1 tablespoon of ghee, 1 teaspoon of karchurak. आपके न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में रामबाण है, रामबाण है, करचूरक। इट इज अवेलेबल विद अस। हल्दी के साथ में बहुत सारे हर्ब्स मिलाए जाते हैं एंड भुना जाता है उनको। दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल मेडिसिन जो लुप्त हो गया, गायब हो गया। वी आर रिवाइविंग इट बैक विथ हल्दी। देर आर फ्यू हर्ब्स विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट ऑल्सो, है ना। उसमें जैसे अश्वगंधा होता है, वचा है उसके अंदर। तो कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि पारंपरिक तौर पे, इट यूज टू बी इन ट्रेडिशन ऑफ सर्टन कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी का ट्रेडिशन था, बट इट इज ऑलवेज टेकन विथ घी। A2 cow ghee, A2 cow ghee with a teaspoon of karchurak, mix it and drink it first thing and do your kumbha.
किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से ये बचाता है. सो यूटीआई ऑल्सो, इट हेल्प्स इन यूटीआई ऑल्सो. So if your digestion is proper, the body's heat is proper, by doing kumbhak, you can improve the body's heat and you help your body to cleanse itself. You'll see any kind of infection will become fine very soon. अगर ये चीजें करेंगे तो इन्फेक्शन भी जल्दी ठीक होगा. तो विरेचन, विरेचन के बारे में बात कर रहे थे. इफ इट इज स्टिल स्टबर्न, यू कैन टेक विरेचन गोली का 1 tablet in the night and you'll see in the morning it will be all clear. Very stubborn constipation, then you can take इच्छा भेदी रस. इच्छा भेदी रस ले सकते हैं, 1 tablet लेंगे रात में, सुबह सब साफ. सो वॉट एवर सूट्स यू, यू क्लियर योर सेल्फ ऑफ कॉन्स्टिपेशन. अपने आप को कॉन्स्टिपेटेड नहीं रखना किसी भी हालत में. ना अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा हमने आपको मालिश बताया है, वो आपको करना चाहिए. अ जेंटल मसाज विथ ऑयल, ये आपको करना चाहिए. देर आर फ्यू प्लेसेस वेयर यू शुड ऑलवेज पुट सम ऑयल. कान में, नाक में, नाभि में, you put some oil in the ear, in the nostrils and in the navi. What is the best oil there? सरसों का तेल, कच्ची घानी सरसों, अनरिफाइंड मस्टर्ड ऑयल. कभी भी इनको खाली ना छोड़ें. हफ्ते में कम से कम एक बार, once in a week, put some oil in the ears, in the nostrils and in the navel. नाभि में डालना. सिर को सूखा नहीं रखना, कभी भी ड्राई नहीं रखना सिर को. हमेशा put some oil on your hair. हमने आपको दिशा बंद बताया है. वी हैव टोल्ड यू दिशा बंद. कड़ा, हसली, कमरबंद या तगड़ी. बिफोर बाथ ऑयल आप डाल सकते हैं, बॉडी ऑयल एंड हेयर ऑयल ऑल्सो, बट डोंट रिमूव इट ऑलवेज ना. शैम्पू करके उसको हटा देना, वो ठीक नहीं. समर में ठंडा ऑयल चाहिए, ये तो आप भी जानते हो. एनी काइंड ऑफ कूलिंग ऑयल. आपको आयुर्वेदिक स्टोर में जाओ, ऑनलाइन देखो, बहुत सारे मिल जाएंगे. So your head should always be cool and your leg should always be warm. सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए, पांव हमेशा गर्म होने चाहिए. दिस इज द इंडिकेशन ऑफ हेल्थ. मस्टर्ड ऑयल, नॉट कैस्ट्रॉल. मस्टर्ड ऑयल डालो कान, नाक और नाभि में. So put mustard oil in ear, nostrils and navel. So your head should be cool and your leg should be warm. अरे ये तो अपने हिसाब से देखो ना, 1-2 ड्रॉप डाल के देखो. हर हफ्ते डालना आपका. एवरी वीक यू शुड पुट ऑयल. So 1-2 drops maximum. दिशा बंद एंड कमर बंद, ट्राई टू कंटिन्यू विद दिशा बंद. कड़ा पहन के रखना है, हसली पाँव में कुछ पहन के रखना है. नाउ ये तो दीपन पाचन विरेचन, वी टॉक्ड अबाउट दैट. व्हाट ऑल कैन बी यूज्ड, द प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज्ड. So try to avoid as much as possible the painkillers. You should avoid painkillers. Only when the pain is too much and you are not able to control it, use it sparingly. कभी कभी आपको दर्द की गोली इस्तेमाल करनी चाहिए, हमेशा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए. So what is the natural alternative? उसका कोई नेचुरल ऑल्टरनेटिव है? यस, शूल वर्जिनी वटी. शूल वर्जिनी वटी. And if you see wherever it is paining,
So if it is blackish in color, if your knees or any place which is paining, जहां पे दर्द हो रहा है, if it is black in color, if it is black in color, वात दोष. If it is white and some kind of a swelling, whitish swelling, it is kapha dosh, or reddish swelling is pitta dosh. So if it is reddish swelling, you cool down that part. वहां पे एक गीली पट्टी लगा लो. Keep it wet cloth. Keep wet cloth there and keep it for half an hour or so. आधे घंटे के लिए रखो. If it is black and white, you can put some warm oil. If it is white, you can do a tight bandage after oil. सफेद अगर है, सूजन है, तो tight bandage. If it is white and there is a swelling, then you put warm oil and a crepe bandage, tight bandage. If it is black in color, then gentle massage, not a strong massage, very gentle massage. A warm oil, but a very gentle massage, no crepe bandage. अलीशा, आई हैव टोल्ड यू हेयर गेटिंग वाइट, बता दिया. ये पेट की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है. पेट का तो सारा कुछ बता दिया है. दीपन, पाचन, विरेचन, एवरीथिंग हैज बीन सेड. हाँ, फॉर कार्टिलेज नहीं होता, डाइजेशन फॉर कार्टिलेज होता है. इफ योर डाइजेशन इज प्रॉपर, रीजनरेशन विल हैपन. एंड डू कुंभक. ठीक है ना. ये हेयर थिन हेयर एंड दर्शन प्रमाण, यस इट इज अवेलेबल इन अविस. क्रिएटिनिन लेवल लोअर करने के लिए कुंभक करो. केवड़ा जल, आई सेड, फॉर किडनी इश्यूज, केवड़ा जल. एंड कीप योर डाइजेशन प्रॉपर, आई सेड एवरीथिंग अबाउट दैट. अब देखो बाकी स्पेसिफिक चीजें, फॉर दैट यू हैव टू कंसल्ट अ वैद्य. आई एम टेलिंग यू ऑल द जेनरिक थिंग्स. आंखों के लिए क्या कर सकते हैं? सप्तामृत लौह, सप्तामृत लौह, एंड टेक सम आई ड्रॉप. वो दर्शन प्रमाण आई ड्रॉप ले सकते हैं. यू कैन टेक दैट आई ड्रॉप. सप्तामृत लौह ले सकते हैं. और इसके अलावा आप कोई भी ड्रॉप ले लीजिए. गुलकावली अर्क, गुलकावली अर्क यू कैन टेक फॉर आईज. जेनरिक वेलबींग फॉर एवरी कंडीशन. और जो बहुत ज्यादा आंखों में लगता है ना, वी हैव अ आई ड्रॉप विच एक्चुअली बहुत आंखों में लगता है. इट इज फॉर कटिंग कफ, कफ काटने के लिए है. हम्म. अभ्रक, अगर अभ्रक भस्म लेंगे तो भी आंखों में फायदा आएगा, अलॉन्ग विथ सप्तामृत लौह. अभ्रक. काजल लगाना शुरू करें. घी का काजल अगर यूज करते हैं, एयर एंड ऑयल काजल इफ यू कैन यूज, और घी काजल इफ यू कैन यूज. इवन मेल्स कैन यूज इट एट नाइट. रात में लगा लें, सुबह धो लें. है ना. गाउट के लिए, यूरिक एसिड के लिए, सब वही बताते जा रहे हैं ना. यूरिक एसिड बढ़ रहा है, गाउट की प्रॉब्लम आ रही है, तो नागर मोथा जल एंड इलायची जल का इस्तेमाल करेंगे. कीप द डाइजेशन प्रॉपर एंड इट विल बिकम फाइन. कीप डूइंग कुंभक. नाउ कमिंग बैक टू न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम का दूसरा पक्ष भी अब उठा के रखते हैं ना, क्योंकि वह एक ही में कितनी दवाइयां आपको बता सकते हैं उसका. नॉट राइट. तो चंद्रमा का पक्ष अगर आपको बढ़ाना है, सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ
mental issue a person gets into. Arthritis is not just arthritis. The core is it starts from the improper digestion. तो उसको ठीक किया अभी हमने. But then apart from it, किसी चीज में कमिटेड रहने के लिए यू शुड बी इन द राइट मेंटल स्टेट और अ साइकोलॉजिकल स्टेट. तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. इफ यू वांट टू हैव कंट्रोल ओवर हंगर, अगर भूख पे कंट्रोल करना है, व्हाट यू शुड डू? किसी को मालूम है? अभी जो बताया वो करो, वेट भी लूज हो जाएगा. लंघनम, राइट. राइट, बिल्कुल सही बोला आपने. किसने बोला? नीलम जी, बहुत बढ़िया बोला आपने. अगर आपको भूख पे कंट्रोल करना है तो लंघनम, भूखे रहना पड़ेगा. जब बहुत भूख लगे थोड़े देर बाद भोजन करें, एकदम से भोजन नहीं करें. इफ यू आर वेरी हंग्री देन वेट फॉर सम टाइम एंड देन हैव फूड. सो इफ यू रिमेन हंग्री यू कैन कंट्रोल हंगर. अगर मन पे कंट्रोल करना, इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड देन व्हाट? अगर मन पे कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड देन व्हाट यू शुड डू? सो इफ यू वांट टू कंट्रोल ओवर द मनस देन यू हैव टू बिकम मौन. मौन, मौन सुना है? मौन, नो थिंकिंग. नॉट साइलेंस, साइलेंस नहीं, मौन. साइलेंस मीन्स बोलना नहीं है, मौन मीन्स नो थिंकिंग. सोचना नहीं है. मौन का मतलब क्या होता है? सोचना नहीं है. राइट. सो इफ यू डोंट थिंक यू विल हैव कंट्रोल ओवर योर थिंकिंग. इफ यू डोंट ब्रीद you will have control over your breathing. Yes or no? That means when you do kumbhak, you don't breathe. You will have control over breathing. So kumbhak is the control of breath or prana. The control of manas is mauna kumbhak. That is also kumbhak. आप होल्ड कर रहे हो ना, रोक रहे हो किसी चीज को, माइंड को रोक रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो कुंभक. अगर आप भूख को रोक रहे हो, इफ यू आर होल्डिंग द हंगर, दैट इज कुंभक ऑफ हंगर. तो कंट्रोल कुंभक से ही आता है. यू कैन कंट्रोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग थ्रू कुंभक ओनली. देयर इज नो अदर वे. कोई और तरीका नहीं है. सो कुंभक विल हेल्प यू टू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड. बट यू कैन ऑल्सो टेक सम सपोर्ट. आप कुछ सपोर्ट भी ले सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल प्रोडक्ट वुड बी, जब आपका मन भारी लगे तो त्रयोदशांग गूगल. त्रयोदशांग गूगल. एवरी डे 2 tablets after meal, after dinner. The second thing that you can use is vacha powder. 1/4 of a spoon of vacha or half a teaspoon of vacha. You can use सर्पगंधा. सर्पगंधा इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 गोली सर्पगंधा की. Apart from that, you can use, what is the best thing to use? Navratan Nasya. Magic Nasya. If you want to cleanse your brain, activate your pituitary gland, come out of brain fog, clarity of thought process, थायराइड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, यू वांट टू कम आउट ऑफ माइग्रेन, हेडेक,
and you want to have a relief in glaucoma, Navratna Nasya. We have this product. This is the only product in the world, और कहीं नहीं मिलेगा, in the world, that can be used to come out of migraine just by smelling. किसी एक टिश्यू पेपर रुई में उसको रगड़ो and smell it with both the nostrils, and you'll see suddenly your brain fog will go. Memory बढ़ जाएगी, clarity of vision, clarity of mind. आप अटक जाते हैं किसी बात पे, डिप्रेसिव टेंडेंसी है, डिप्रेशन चला जाएगा. सडनली चेंजेस योर ट्रैक ऑफ ब्रेन, दिमाग का ट्रैक चेंज कर देता है. You can use Manmeet. Manmeet is simple capsule form, very safe, very effective. Manmeet capsules, 2 capsule every night, and you will be out of stress. कोई भी स्ट्रेस से आपको नींद अच्छी आ जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा. नेचुरल, नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट. मन का मीत, मन मीत. Yes, it helps in brain hemorrhage also. Even the Navratna Nasi is very powerful and addictive. उसको यूज करो every hour. Just a little bit, smell it. सूंघना ही तो है. Very powerful. भूमि सत्व, मिट्टी का सत्व निकाल के वो यूज कर सकते हैं. वी हैव दैट. यू कैन put it in your nostrils, smell it, put it in the nostrils and mouth. भूमि सत्व गट माइक्रोबायोटा रीसेट करेगा. गट माइक्रो, बिकॉज दैट इज योर सॉइल. हम मिट्टी से ही इसको निकालते हैं. आर्थराइटिस के लिए वॉट एवर यू आर टेकिंग, यू कैन टेक सम नेचुरल ऑल्टरनेटिव ऑल्सो. वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड गतिमान फॉर आर्थराइटिस, गाउट. भूमि सत्व, गट का भूमि सत्व. भूमि मतलब जमीन, अर्थ. गतिमान, विच विल हेल्प यू मूव. गतिमान फॉर आर्थराइटिस, रूमेटॉइड. गतिमान. You can always consult an Ayurvedic Vaidya if you find one good Ayurvedic Vaidya, उससे consult करके कुछ support लें. And put some natural medication along with your chemical medication, so that slowly and steadily you can come out of chemical medication. सिर में दर्द है तो क्या यूज करना है? शिरोशूल, शिरोशूल रस. सिर के दर्द के लिए वज्र रस ऑल्सो. इसको वज्र रस भी बोलते हैं. वज्र, वज्र मीन्स डायमंड. वज्र रस. फॉर ग्लूकोमा, कुंभक इज द ओनली थिंग. बट यस, some support can be taken from outside, some eye drop, but kumbhak is the best medicine for glaucoma. ग्लूकोमा ठीक हो जाता है कुंभक से. है ना. सर दर्द में, माइग्रेन में शिरोशूल आदि वटी और वज्र रस ऐसा यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज दैट. बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो दवाइयों के बारे में अभी बात हो गई हमारी. हाँ, नी पेन में बताया मैंने आपको. देखिए, ये सारी प्रॉब्लम की जड़ बता दिया मैंने. वी कांट टॉक अबाउट एवरी प्रॉब्लम ऑल द टाइम ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में. सो व्हाट आई सेड इज करेक्ट द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम, and you will get relief in every other problem. Now, disease is not just about your body. Disease is not just about your body. Especially when it is subtle, when it is psychological or mental in nature. तो इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं? So, you are an entity, isn't it? But do you have control over things which are in nature? प्रकृति में जो चीज हो रही है, if it is raining, do you have control over rain? आप उसे बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते. Do you have control over things which are placed in a certain manner? एवरेस्ट है ना एक जगह पे, हिमालय इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया.
उसको उठा के कहीं साउथ में कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं। जो भी आपके हाथ में नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज भाग्य। वॉट एवर इज नॉट इन योर हैंड, यू कैन पुट जुपिटर और पुट टेक जुपिटर एंड प्लेस इट समवेयर एल्स। कहीं पे जुपिटर को उठा के, बृहस्पति को उठा के कहीं और तो नहीं रख सकते। सो दैट इज कॉल्ड एज भाग्य। उसको हम भाग्य कहते हैं। Whatever is there in our control, like for example, in society you might have some say। एक सोसाइटी में आप कुछ बोल सकते हैं, हो सकता है आपकी बात मान ली जाए, हो सकता है आपकी बात नहीं मानी जाए। इन योर फैमिली यू कैन हैव मोर ऑफ अ से। अगर परिवार में है तो आप ज्यादा कुछ बोल सकते हैं, ज्यादा बातें मानी जाएंगी। देर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स विच विल बी लिसन एंड देर विल बी सम थिंग्स विच विल नॉट बी, nobody will listen to that। बट वेन इट कम्स टू योर इंटरनल नेचर, आपके अंदरूनी हालात के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, वेन इट कम्स टू योर इंटीरियोरिटी, इट इज 100% इन योर कंट्रोल। यस और नो? इट इज 100% इन योर कंट्रोल। तो मुझे एक बात बताओ, सभी रो क्यों रहे हैं? अभी थोड़ा स्माइल कर सकते हैं? कैन यू स्माइल? थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हैं? कैन यू स्माइल एट दिस मोमेंट? मुस्कुरा सकते हैं ना? सो वी कैन इमीडिएटली शिफ्ट फ्रॉम वन मोड टू अनदर विद इन योर सेल्फ। इसमें कोई, nobody is going to interrupt in that। कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। राइट? सो एक प्रॉमिस मैं चाहता हूं आपसे, वन प्रॉमिस आई वांट फ्रॉम एवरीबडी, दैट यू टेक कंट्रोल ऑफ दिस। फॉर वॉट एवर रीजन, डोंट डिस्टर्ब योर इंटीरियर। दुनिया में तूफान आ गया, लड़ाई होगी, मगर अपने अंदर आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। यू बी इन अ राइट मोड फ्रॉम विद इन, बिकॉज दैट इज इन योर हैंड। वो आपके अंदर, आपके हाथ में है। देन कम्स अ लिटिल आउटसाइड। अब बाहर की बात आती है। सो हाउ यू कैन टेक कंट्रोल ओवर योर भाग्य, या हाउ यू कैन एक्सेस योर भाग्य। भाग्य पे आपका कंट्रोल नहीं है, बट व्हाट इज भाग्य? वॉट एवर यू कैन कंट्रोल ऑफ इन नेचर इज योर भाग्य, एंड इट इज अवेलेबल टू एवरीबडी। प्रकृति में जो आपके कंट्रोल में चीजें नहीं है, वही आपका भाग्य है, मगर वो भाग्य सबके लिए एक जैसा है। अब सूर्योदय होता है, वेन एवर द सन इज राइजिंग, इफ यू पुट 10 पीपल टू सी दैट सनराइज, दो लोगों को बहुत सुंदर लगेगा, दो लोग ऐसे भी होंगे, दे वुड बी क्रिबिंग अबाउट इट, उनको कुछ खास अच्छा नहीं लगेगा। So it is not the sunrise which creates an impact in you. It is how you want to create an impact within yourself. Sunrise से impact नहीं आता। Stress is not without because of the situation. Put 10 people in the same situation. एक ही स्थिति में 10 लोगों को डाल दो। Not everyone will get into stress. तो स्ट्रेस सिचुएशन की वजह से नहीं होता। It is not because of the situation you get into stress. How and what you want within yourself, that is what you will get. But then how to be accessible to भाग्य? भाग्य के लिए accessible कैसे दें? So there are practical methods to it, and we'll open up that aspect also if you want. If you want, you can access it. हम धीरे धीरे करके we will initiate people into a special mantra according to their problem, and we will also give them a yantra। एक यंत्र उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से हम मंत्र भी देंगे। If you are committed to it, you will see the bhagya will open up for you, because you are trying to access something, making yourself conducive, you will see it will open up. Now, for any kind of a मानसिक परिस्थिति और psychological situation, this can become an amrita, एक तरीके का रामबाण बन सकता है।
Once you change your psyche, you will see your impact, the impact on the body also. You can also take help of a good astrologer, and you can use ratna. रत्न धारण करें, प्रेशियस स्टोन. यू कैन, बट डोंट, मतलब उसको सर पे नहीं चढ़ाना. यू कैन गो फॉर इट. वास्तु का इस्तेमाल करें, न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करें, वॉट एवर यू कैन. है ना. ये इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट मैं ये बात कर रहा हूं. सबसे पहले मैंने क्या बोला, कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं. देन कम्स टेकिंग सपोर्ट ऑफ मेडिसिन, यूज करेक्टिंग द फूड. उसके बाद में फिर जब आते हैं तो कहते हैं योर इंटीरियरिटी दैट इज 100% इन योर कंट्रोल, योर कर्मा. देन कम्स भाग्य. उसमें फिर क्या यूज कर सकते हैं, यंत्र मंत्र यूज कर सकते हैं. देन यू कैन यूज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, दोज काइंड ऑफ साइंसेस. बट देन इट कम्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस इंडेक्स. इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही वो पीछे की तरफ में आता है. इवन फॉर कीपिंग योर सेल्फ फाइन, द हर्ब्स आर सेड, जो मैंने बताया आपको हर्ब्स, यू कैन यूज दोज हर्ब्स. है ना. बच्चों में आजकल बड़ी परेशानी है, तो स्मृति सागर रस, मनस मित्रवटी, दिस काइंड ऑफ स्टफ कैन बी यूज्ड. So try to use more of a natural stuff. So you can consult वैद्य for it. वैद्य को consult कीजिए. When in emergency, बहुत ज्यादा emergency है या फिर short term use करना है, you can consult a doctor and use some chemical medication. Surgery end moment में, last में, when nothing can help, you can go for surgery, because surgery is just a management. It is not a treatment. You can go for that surgical management. इफ इट इज utmost नेसेसरी, बहुत जरूरी है तो कर सकते हैं. बट देन बिफोर दैट यू कैन गिव योर बॉडी अ चांस. अपने शरीर को मौका दीजिए. 6 महीने कंटिन्यूसली अपने शरीर पे काम कीजिए. 1 साल के अंदर अपनी सभी दवाइयों से निकल जाइए. फॉर 6 months यू वर्क अपॉन योर बॉडी रिलीजियसली एंड इन अ रेजिमेंटल मैनर. इन 1 year's टाइम यू कम आउट ऑफ योर केमिकल मेडिसिन एंड यू विल सी. इफ आई गिव यू अ डील, 3 साल में तो सभी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी होगी, 100% गारंटी. बट देन यू विल हैव टू गिव योर बॉडी अ लिटिल टाइम. अपने शरीर को थोड़ा समय देना पड़ेगा. जो सपोर्ट ले सकते हैं ले लीजिए. आज के समय जो सपोर्ट अवेलेबल है वो ले लीजिए. बट देन एम्पावर योर बॉडी, बिकॉज योर बॉडी विल ओनली करेक्ट यू, रिवर्स योर डिजीज एंड हेल्प यू, एम्पावर यू. इसके अलावा तो भगवान भी आ जाए तो आपको ठीक नहीं कर सकते. ईश्वर में भी वो ताकत नहीं है जो आपको ठीक कर सके. केवल आपके शरीर में वो ताकत है जो आपको ठीक कर सके. ठीक है ना. So what we can do in the next session is we can compile questions. हम क्वेश्चन को थोड़ा हम कंपाइल कर सकते हैं ताकि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन का भी हम आपको आंसर दे सकें. ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं. तो मेंटर्स इसका ध्यान रखें कि नेक्स्ट टाइम पे हम करेंगे ना. शालिनी जी, यस। है ना, जी थोड़ा. स्वामी जी। हाँ, इनके जरूर। क्वेश्चन इनवाइट कर लो और उसके बाद कंपाइल करके उनको भी स्पेसिफिक आंसर करने की कोशिश करेंगे. सम स्पेसिफिक थिंग्स आई टेल यू अबाउट. देयर आर पीपल हु वर आस्किंग, बहुत कह रहे थे मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैसे आ गया, और व्हाट इज द स्पेसिफिकली कॉज ऑफ रिमेटॉइड, उसका कारण क्या है, एंड वेरी स्पेसिफिक सॉल्यूशन, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन कैसे आ सकता श्योर। है. राइट. तो आज या। के लिए इतना ही रखेंगे. अच्छा, एक चीज बहुत अच्छा काम करती है, मालूम है आपको क्या? मैजिक की तरह काम करते हैं. अगर बहुत परेशान हो गए, इफ यू कैन कनेक्ट विथ मी, इफ यू कैन कनेक्ट विथ मी, इफ यू फील दैट आई एम योर्स, आपका ही हूं मैं, तो अपने कष्ट मुझे दे दीजिए और आगे बढ़ जाइए.
ये मैजिक की तरह काम करता है, कभी आजमा के देखो। ठीक है, और लाइफ में अटकना नहीं है, डोंट गेट स्टक, मूव अहेड। एवरीबडी हैज अ प्रॉब्लम, बट देन यू हैव टू सी अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। आगे की ओर देखना। आप लोग स्वस्थ रहें, खूब स्वस्थ हो जाएं, खूब प्रसन्न हो जाएं, हैप्पी हो जाएं। हाँ, वैभवशाली हो, आपके जीवन में कोई कमी नहीं हो, ऐसी मेरी शुभकामना और आशीर्वाद। थैंक यू स्वामी जी। So, thank you everybody for joining in. Now, the recording will be in process, okay, and everybody will be sharing the recording in your respective class groups. If not your class groups, we'll be sharing it in the alumni groups. From where you got this particular link, वहां पर हम लोग ये recording जो है वो शाम तक share करेंगे, ठीक है? Okay. So thank you everybody once again for joining in. See you next month again. Thank you so much.